अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर एंड दैट इज़ हाउ टू चूज़ द राइट फाउंडेशन शेड फॉर मी और द राइट फाउंडेशन फॉर मी। ये एक ऐसी वीडियो थी जो रिसेंटली मेरे डीएम्स में किसी ने रिक्वेस्ट की थी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वाज लाइक वाओ दैट्स अ वंडरफुल वीडियो आइडिया एंड आई रियली encourage you guys to always keep requesting videos in my DMs, in my comment section, wherever you want to request them, because I do read through all of them, and depending on what excites me and what I think is going to be really useful, I do make those videos. So just a reminder, whatever requests you have, please leave them in the comment section down below. But anyways, ये एक ऐसा मसला है that like a lot of people, especially those newly getting into makeup, they are often like asking me that question कि जी फाउंडेशन कैसे ली जाए, how to pick the right foundation shade, and I can totally relate क्योंकि I cannot even begin to count the number of foundations जो मैंने गलत ली हैं, either shade गलत लिया है या मैंने उनकी finish गलत ली है या whatever it may be. I've wasted a ton of money, more than I would like to admit, on buying the wrong foundations. So I feel you, I am here to help you and let's get started with this video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके साथ बेल बनी हुई है उसको भी प्रेस कर दें. इट विल टेक ओनली अ सेकेंड. वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स मेरे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें. ऑल ऑफ दिस विल हेल्प दिस चैनल ग्रो एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट इट. सो चलें, विदाउट फर्दर अडू, let's jump right into this video. अच्छा जी, I have all of my notes jotted down here in front of me and मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ. But if I forget something and if there is something else that like you guys need to know, please ask those questions and I'll be more than happy to help. So जो I've like titled this video, like titled these notes as things to consider before buying a foundation. इसको मैंने दो कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया. एक तो है जनाब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस एंड देयर इज़ अ बंच दैट कैन बी कंसिडर्ड अंडर दैट कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, एंड देन देयर आर थिंग्स दैट आर जस्ट द साइंस ऑफ योर फेस एंड द फिज़िक्स ऑफ योर फेस. सो हम उस पर भी बात करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रेफरेंस की. ये वो चीज़ है जो बंदे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. यू कैन हैव the exact same skin type and the exact same complexion and the size of your face can be the exact same as another person, but your preferences are maybe different. So जिन preferences का आपने mental note बनाना है before like going to buy a foundation, that is कि आपको finish किस तरह की पसंद है. Do you like it when the foundation is a little dewy and light reflects off your face? Do you like that kind of foundation, or do you like the foundation that's like matte? Or do you like a foundation that's like very natural looking, not in coverage but also in the finish of it? कि कहीं कहीं से it's like reflecting light a little bit, but for the most part it's matte. Or maybe you like a foundation that's like demi-matte, that it's matte but it's not like too matte. So अपनी preference उसके बारे में do make a mental note of it. I would recommend कि किसी से borrow करके या जो आपने गलत foundations ले रखी हैं उनमें से लगा के अपने ऊपर try करें कि whether your preferred finish suits you or not, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे को suit नहीं करती है. So maybe you really like the look of glossy, really dewy skin, but for you it just doesn't work. So एक दफ़ा I would say कि पैसे लगाने से पहले एक दफ़ा खुद के ऊपर like एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आपको वो चीज़ सूट कर रही है, आपको अपने ऊपर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. ठीक है जी. द सेकेंड थिंग अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस, द नोट दैट यू नीड टू मेक इज़ कि आपकी नीड क्या है, आप किस ज़रूरत के तहत ये फाउंडेशन ले रहे हैं. डू यू नीड इट फॉर डे टू डे? और इसमें अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि आप उसमें आपको अच्छा लगता है रोज़ाना फुल कवरेज फाउंडेशन लगाना, आप फाउंडेशन रोज़ाना की बेस पे लगाना ही नहीं चाहते हैं, एंड यू लाइक वुड बी हैप्पी विद अ टिंटेड मॉइस्चराइज़र, और लाइक एनीथिंग इन बिटवीन कि आपकी नीड क्या है. डू यू वांट इट फॉर डे टू डे? डू यू वांट इट फॉर लाइक इवेंट्स, आपको शादियों के लिए, डिनर्स के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए, ऐसे मौक़ों के लिए फाउंडेशन ख़रीदनी है? डू यू वांट इट फॉर लाइक, do you want a foundation that looks good on the camera? Maybe you are a YouTuber, maybe you are an Instagrammer, maybe you are a vlogger, maybe you are a model. आपकी ज़रूरत ये है कि आप जो फाउंडेशन लगाएं वो कैमरा पे अच्छी लगे. So is that your need? Is your need कि आपकी फाउंडेशन की लास्टिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए? Because बहुत सारे लोग when they're reviewing a foundation तो वो ज़रूर इस बात का नोट like they make a note कि फाउंडेशन की लास्टिंग पावर कैसी है. And oftentimes I find myself not caring about it at all कि अच्छा लास्ट करिए नहीं करिए, I really don't care. But that's not the case for a lot of people.
अगर आपकी जॉब का नेचर ऐसा है कि यू वांट योर फाउंडेशन टू लास्ट ऑल डे लॉन्ग एंड यू वांट योर फाउंडेशन टू लुक फ्रेश ऑल डे लॉन्ग, तो यू डू केयर अबाउट दैट स्टफ. मे बी यू हैव अ डेस्क जॉब फ्रॉम लाइक 7 in the morning या 8 in the morning to 5, और मे बी यू आर एन एयर होस्टेस. एयर होस्टेसेस का आई हैव ऑलवेज नोटेड कि उनका मेकअप has to always look fresh. I won't comment on the quality of that makeup, but like they do like have a fresh face at all times. So maybe it's a job requirement. I don't know the details, but they do like have to have at least in my experience, in my observation, they need a fresh looking face all day long. So with all of that said, आपको ये सारी की सारी अपनी प्रेफरेंसेस और नीड्स इनका एक मेंटल नोट बना के फाउंडेशन ख़रीदने के लिए जाना है. ठीक है जी, ये तो बात हो गई पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं द साइंस ऑफ योर फेस, द फिज़िक्स ऑफ योर फेस. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल प्रेफरेंस पे नहीं छोड़ी जा सकती, दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ फाउंडेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज नाउ. अच्छा जी, अब जो ये कैटेगरी है ना, साइंस ऑफ योर फेस, फिज़िक्स ऑफ योर फेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन टाइप. वॉट इज़ योर स्किन टाइप? इसको हम बहुत दफ़ा लाइक वी पुट इट ऑन द बैक, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट एट टाइम्स. एंड आई फील लाइक कि बहुत सारी गलत फाउंडेशंस जो ख़रीदी जाती हैं वो इस वजह से ख़रीदी जाती हैं कि हमने इस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को कंसिड्रेशन में नहीं रखा होता. हम सबकी स्किन टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है. कुछ लोग होते हैं उनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली, तो ऐसी स्किन के लिए अगर आप ऐसी फाउंडेशन ले लेंगे दैट्स वेरी हाइड्रेटिंग, दैट्स मेड फॉर ड्राई स्किन पीपल, तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा. बिकॉज यू विल मतलब स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इवन मोर ऑयल एंड यू विल लुक वेरी ऑयली बाय द एंड ऑफ द डे एंड नॉट इन अ गुड वे. सो आई फील लाइक कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपने उस हिसाब से फाउंडेशन लेनी है. लाइक रीड अप ऑन द लाइक वेबसाइट और ऑन द बॉक्स ऑफ द फाउंडेशन, रीड अप जो कंपनी का डिस्क्लेमर होता है, जो कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट द प्रोडक्ट, उसको एक दफ़ा पढ़ें एंड दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि ये फाउंडेशन किन लोगों के लिए बनाई गई है. ऑल फाउंडेशंस आर नॉट मेड फॉर ऑल पीपल. सो उसको एक दफ़ा पढ़ लें एंड लाइक you'll get a better idea कि ये फाउंडेशन आपको सूट करेगी भी कि नहीं करेगी. You may have sensitive skin, you may have acne prone skin, maybe you have very dry skin, maybe you have combination skin, maybe you have oily skin. Like हज़ारों तरह की स्किन टाइप्स हो सकती हैं. I don't know, I'm not sure हज़ारों तरह की हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, but you get my point. There could be a number of different skin types and all foundations would not suit all of those skin types. So अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन का सिलेक्शन करें. दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोगों को लगता है कि फाउंडेशन की सिलेक्शन यहीं से शुरू होती है यहीं ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ द शेड मैच. आपने शेड कैसे मैच करना है अपनी फाउंडेशन का. ठीक है जी, इसमें मैं पहली चीज़ तो जो रेकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि लाइक एग्जामिन योर स्किन इन द मिरर. ठीक है, अपने कम्प्लेक्शन को लाइक टेक अ गुड लुक एट इट एंड सबसे पहले अपनी अंडरटोन डिटर्मिन करें. कई दफ़ा ऐसा होता है कि फाउंडेशंस जो है ना वो आप नोट करेंगे, कुछ फाउंडेशंस आर लिटिल बिट ऑफ पिंक, उनमें हल्का सा पिंक टिंट होता है, whereas other foundations they're little yellow, and then there are some foundations that are like beigey, उसको कहते हैं नेचुरल अंडरटोन. सो जो साइंस होती है इसकी और वो जो आपकी स्किन में कौन कौन सी वेन्स नज़र आ रही हैं, आप इसको अगर गूगल करेंगे हाउ टू फाइंड आउट योर अंडरटोन, तो वो उसमें इस किस्म की आपको जवाब मिलेंगे कि अपनी स्किन देखें और अपने बाजू देखें और उसके अंदर वेन्स देखें, इस कलर की हैं तो ये अंडरटोन है. कीप इट सिंपल. डू यू थिंक लाइक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and assess yourself. Do you think आपकी स्किन में olive undertones आ रही हैं, like a hint of green and a hint of yellow? Do you feel like what is your gut telling you? And you can maybe ask your friends too. Am I more yellow than pink? Am I more pink? आपकी complexion में pinkishness ज़्यादा है. अगर आप थोड़े dark हैं तो do you find your skin to be a little more red or do you find your skin to be a little more olive? Like I feel like कि वो सारे experiment like veins को analyze करने से like मुझे तो ऐसा लगता है कि I don't know मुझे क्या लगता है, बट आई फील लाइक कि सबसे बेहतर तरीका अपनी अंडरटोन डिटर्मिन करने का इज़ लाइक दीज आइज़ दैट अल्लाह गिव यू. ख़ुद को देखें इन द मिरर या अपने फ्रेंड्स को कहें कि आपको लाइक लुक एट यू फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड टेल यू कि आपका अंडरटोन क्या है, व्हाट इज़ योर अंडरटोन, एंड दैट विल गिव यू अ गुड गेस. अब ऐसा होता है कि अगर आपका अंडरटोन येलो है और आपने ले लिया फाउंडेशन जिसके अंदर पीची टोन्स आ रही हैं या पिंकिश टोन्स आ रही हैं,
तो ऐसी फाउंडेशन आपके ऊपर लगेगी ग्रे, वो आपके ऊपर सूट नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपकी अंडरटोन्स है पिंक और आपने फाउंडेशन ले लिया येलो तो आप बहुत डार्क लगेंगे। सो बहुत दफ़ा लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम फाउंडेशन लगाने के बाद और ज़्यादा डार्क लगने लग जाते हैं, बिकॉज अपेरेंटली द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग अ फाउंडेशन और अप्लाइंग अ फाउंडेशन इज टू लुक गोरा, और वो आप नहीं लगते हैं और काले लगने लग जाते हैं। दैट्स अनदर डिबेट, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बट माई पॉइंट हेयर इज़ कि आप अगर अपनी अंडरटोन की फाउंडेशन लेंगे तो वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको ज़्यादा सूट करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन कलर की। जब आपने कलर्स को मैच करने की कोशिश करनी है ना अपनी स्किन के साथ, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने जब फाउंडेशन ख़रीदने जानी है तो हाथ पे स्वॉच करनी है। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपकी जो वो सेल्स गर्ल होती है वो आपके हाथ पे फाउंडेशन लगा के आपको कहती है ओ हो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे मिल गई है स्किन के साथ। लाइक देयर जॉब इज़ टू सेल दैट फाउंडेशन टू यू। सो वो जैसी भी लग रही होगी दैट्स व्हाट दे विल टेल यू। पहली बात तो ये कि 9 out of 10 टाइम्स आपके हाथों का और आपके चेहरे का कम्प्लेक्शन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। फॉर मी, मेरे हाथ जो हैं वो मेरी चेहरे से 2 या 3 शेड्स डार्क हैं। सो अगर मैं अपने हाथ पे फाउंडेशन लगा के लूँ तो इट विल बी अ लिटिल टू डार्क फॉर माई फेस, और अगर मैं अपने फेस के हिसाब से मतलब फाउंडेशन चेहरे पे हाथों पे लगाऊँ तो वो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत चिट्टा चिट्टा कलर ले लिया है मैंने। द आइडियल प्लेस टू ट्राई आउट अ फाउंडेशन इज़ राइट हेयर, क्योंकि आपकी फाउंडेशन को मैच करना होता है आपकी नेक के साथ, आपके फेस को आपकी नेक से मैच करना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन लाइक दैट विल बी द बेस्ट मैच, क्योंकि आप ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई मास्क पहन लिया है, एंड लाइक इट विल ऑल लुक एज वन। सो आई वुड रिकमेंड कि जब आप फाउंडेशन ख़रीदने जाते हैं तो उसको अपने हाथ के पीछे स्वॉच करने के बजाय वही फाउंडेशन पकड़ें और अपने लाइक डोंट गो विद अ फुल फेस ऑफ मेकअप फर्स्ट ऑफ ऑल टू बाय योर फाउंडेशन। मुँह धो के जाएँ स्किन केयर करके जाएँ, लेकिन फाउंडेशन ना लगा के जाएँ, ठीक है। अब अपनी नेचुरल यू वांट टू ट्राई आउट द फाउंडेशन ऑन योर नेचुरल कम्प्लेक्शन, ठीक है। और वही फाउंडेशन जो आपने पीछे हाथ की लगानी है उसको पकड़ के जस्ट ड्रॉ लाइन अक्रॉस योर जॉ लाइन यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी फाउंडेशन आपके चीक्स पे हो और थोड़ी सी फाउंडेशन आपकी नेक पे हो, एंड दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि ये फाउंडेशन आपके ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि समटाइम्स आपकी नेक का और मुँह का भी कम्प्लेक्शन नेचुरली थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इट कैन वेरी वेल बी दैट। तो यू वॉन्ट टू लाइक गो फॉर समथिंग, या यू वॉन्ट टू गो फॉर अ शेड जो कि यू फील लाइक कि दोनों पे लग के अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑन दैट नोट, जैसा मैंने कहा, लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है हम फाउंडेशन लगा के अपने असल से कम्प्लेक्शन से भी ज़्यादा डार्क लगने लग जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि मेकअप करने के बाद आप अपने कम्प्लेक्शन से ज़्यादा गोरे लगने लग जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने कम्प्लेक्शन के लगें लेकिन द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ऑलवेज गो फॉर द फाउंडेशन दैट्स मेड फॉर योर शेड, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, उससे आपके चेहरे की जो ओवरऑल मेकअप का लुक है वो बेस्ट तभी लगेगा जब आप अपने शेड की फाउंडेशन यूज़ करेंगे। इट वोंट लुक गुड इफ़ यू गो टू लाइट, इट वोंट लुक गुड इफ़ यू गो टू डार्क, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा जी, ये दोनों बातें हमने कर ली, पर्सनल प्रेफरेंस की बात भी कर ली और हमने बात कर ली द साइंस ऑफ योर फेस एज आई कॉल इट। अब कुछ ऐसे और बातें दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर यू गो एंड बाय अ फाउंडेशन, ठीक है। जब आप ऑनलाइन फाउंडेशन लेने लगते हैं ना, और स्पेशली दिस इज़ ट्रू फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, ठीक है। मैंने ये गलती इतनी दफ़ा की है और मैंने इतने पैसे ज़ाया किए हैं गलत फाउंडेशन शेड लेने पे, क्योंकि एक आपकी अपनी परसेप्शन होती है अबाउट योर शेड, ठीक है। हम पाकिस्तानी कम्प्लेक्शंस में लेट्स से आई वुड से मेरा गंदमी सा रंगत है, आई एम नॉट द फेयरेस्ट ऑफ, आई वुड ऑलवेज, अगर जो पाकिस्तानी लोकल फाउंडेशन है ना, आई वुड बी द सेकंड और द थर्ड शेड इन मोस्ट ऑफ दैम, ठीक है। अब मेरा ये कम्प्लेक्शन है एंड आई कंसिडर माई सेल्फ मीडियम कम्प्लेक्शन। मैं अपने आप को बहुत गोरा भी कंसिडर नहीं करती, बहुत डार्क भी कंसिडर नहीं करती, ठीक है। और मैंने ये गलती बहुत दफ़ा की कि जब मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स ख़रीदने लगती हूँ जिनकी 40-50 शेड रेंज होती है, बहुत वाइड शेड रेंज होती है, उसमें मैंने क्या किया कि उसमें मैंने 2-3 दफ़ा इसी तरह किया कि उनके नामों के साथ भी लाइक दे हैव अ लिटिल डिस्क्रिप्शन कि दिस इज़ मेड फॉर मीडियम स्किन टोन्स एंड दिस इज़ मेड फॉर डार्क स्किन टोन्स। तो मैंने कई दफ़ा इस तरह की फाउंडेशन ली जिसके ऊपर लिखा हुआ था मेड फॉर मीडियम, क्योंकि मेरा परसेप्शन ये है कि आई हैव लाइक मीडियम कम्प्लेक्शन। तो मैंने बहुत दफ़ा मीडियम स्किन टोन की फाउंडेशन ली एंड इट वाज ऑलवेज टू डार्क फॉर मी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो वहाँ पे फाउंडेशंस बन रही हैं दे आर मेड फॉर द लाइटेस्ट ऑफ लाइटेस्ट एंड द डार्केस्ट ऑफ डार्केस्ट। उनके जो डार्क कम्प्लेक्शंस हैं दे आर टू डार्क, क्योंकि वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन भी है, उनके लिए भी वो फाउंडेशंस बनाते हैं। पाकिस्तान में जो फाउंडेशंस बनती हैं, या वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ मीडियम कम्प्लेक्शन पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से, सो वी आर नोवेयर नियर द मीडियम रेंज इन दी लाइक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ शेड रेंज। सो आईड बी लाइक वहाँ के रेंजेस में
आई वोंट बी फेयर बट आई विल बी लाइट. वहाँ पे फेयर जो है वो लाइटेस्ट कम्प्लेक्शन है, लेकिन लाइट जो है वो उसके बाद वाली रेंज आती है. तो आई ऑलवेज ग्रैब फॉर दोज फाउंडेशंस नाउ, और अब वो मुझे ठीक रहती हैं. आई पर्सनली ऑलवेज बाय लाइट फाउंडेशंस विद ऑलिव या विद और येलो अंडरटोन्स, एंड दैट प्रीटी मच ऑलवेज वर्क्स फॉर मी. ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंस को आपने हमेशा ज़हन में रखना है, स्पेशली व्हेन बाइंग इंटरनेशनल फाउंडेशंस या वो वाली फाउंडेशंस जिनकी शेड रेंज बहुत वाइड होती है. ये पहली चीज़ है जो आपने दिमाग में रखनी है. दूसरी चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है वाइल बाइंग फाउंडेशंस इज़ ऑक्सीडाइजेशन. ऑक्सीडाइजेशन ये होती है कि जब फाउंडेशन एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट, वैसे तो बॉटल में होती है, लेकिन जब चेहरे पर लगती है तो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर. बहुत सारी फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो एयर के साथ कॉन्टैक्ट आने पे अपना रंग बदलती हैं. सो जब आप फाउंडेशन ख़रीदने जा रहे हैं तो यू कैन, लाइक इफ़ दे अलाउ यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड जस्ट वॉक अवे. थोड़ी सी फाउंडेशन लगा के यू कैन लाइक गो ऑन विद योर डे, घर आ जाए, उस वक्त ख़रीदनी ज़रूरी नहीं है इफ़ इट्स नॉट दैट अर्जेंट. एंड लाइक नोटिस कि वो फाउंडेशन आप पे ऑक्सीडाइज किया या नहीं. डिड इट चेंज कलर, लाइक, और इज़ इट एग्जैक्टली लाइक इट वॉज इन द बिगनिंग. जो उसका रंग आएगा ना आफ्टर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, वो शेड आप डिटर्मिन करेंगे कि वेदर इट्स अ गुड मैच फॉर यू और नॉट. अगर इट्स अर्जेंट तो आप सिर्फ उसको स्वॉच करके राइट अवे ले सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि कुछ फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज कर जाती हैं, एंड मे बी दिस विल बी वन ऑफ दोज फाउंडेशंस जो 10, 15, 20 मिनट के बाद अपना रंग बदल लेगी. सो कीप दैट इन माइंड एज वेल. तीसरी चीज़ जो आप जहन में रखेंगे वो ये रखेंगे, जब आपने फाउंडेशन लगाई है ना सारे चेहरे पे, तो आप अननेचुरल लगेंगे ही लगेंगे. वजह, क्योंकि जब आप सारे चेहरे पे फाउंडेशन लगाते हैं तो आप अपने चेहरे के नेचुरल कॉन्टोर्स और हाइलाइट्स को छुपा रहे हैं. यानी कि यू आर लाइक पुटिंग अ वेल ऑन द नेचुरल कॉन्टोर्स एंड द नेचुरल शेडोज दैट लाइक आर देयर ऑन योर फेस दैट मेक योर फेस लुक नेचुरल. सो ब्रॉन्ज़र की अहमियत बहुत ज़्यादा है. मैं इसको कई दफ़ा अपने चैनल पे मेंशन कर चुकी, बट आई नीडेड टू मेंशन इट इन टुडेज़ वीडियो एज वेल, कि ब्रॉन्ज़र इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कि जब आपने फाउंडेशन लगा ली है तो उसके बाद आपने अपने चेहरे को ब्रॉन्ज़ करना है दोबारा, टू ब्रिंग बैक ऑल द शेडोज़. अगर वो शेडोज़ मिसिंग होंगे तो दैट्स नॉट अ नेचुरल फेस. अ नेचुरल फेस हैज़ शेडोज़. तो आपको वो शेडो वापस लाना ही लाना है. अगर आप वो शेडो वापस नहीं लाएंगे तो चाहे आपकी फाउंडेशन इज़ द परफेक्ट मैच फॉर यू, चाहे वो बाकी हर कैटेगरी, हर लेवल पे परफेक्ट ही क्यों ना हो, इट विल नॉट लुक गुड ऑन यू, और इट विल, मे बी आई शुड से, इट वोंट लुक नेचुरल ऑन यू, बिकॉज यू आर मिसिंग लाइक ऑल द शेडोज़ दैट मेक योर फेस द वे इट इज़. सो उन शेडोज़ को वापस ज़रूर लाएँ. जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हैं ब्रॉन्ज़र ज़रूर लगाएँ. सो दोज आर द थिंग्स, additional things that I think you should keep in mind when buying a foundation. And that's everything. I hope it was a very comprehensive note on what to consider, things to keep in mind when buying a foundation. And I think इस comprehensive सी वीडियो में आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे. अगर नहीं मिले तो प्लीज़ do leave a comment in the comment section down below. Ask me any other questions that you may have and I'll be more than happy to answer them. So yeah, आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.